हाँ जी बच्चों, किद्दां हो? ठीक हो सारे? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਬੱਚੋ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸਰੂਪ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਬੱਚੋ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਸ਼ੈਡਿਊਲਸ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ, ਸ਼ੈਡਿਊਲਸ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 395 ਆਰਟੀਕਲਸ ਪਲੱਸ 22 ਭਾਗ ਪਲੱਸ 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚੋ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਅਨੁਛੇਦ 395 ਸੀ, 22 ਭਾਗ 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸ਼ੈਡਿਊਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੋ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਉਹ ਨੇ 12। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ? 8। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ? 12। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਤਾਂ ਇਹ 8 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਤੋਂ 4 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ, 5ਵੀਂ ਤੇ 6ਵੀਂ, 7ਵੀਂ ਤੇ 8ਵੀਂ, ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੋ 3 ਭਾਗ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਨਵੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, 4 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ 9 ਤੋਂ 12। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, 1 ਤੋਂ 4 ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, 5 ਤੋਂ 6 ਇਹ ਇੱਕੋ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ, ਸੇਮ, 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ 9 ਤੋਂ 12 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੱਚੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1 ਤੋਂ 4 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੱਚੋ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕਿੰਨੇ ਰਾਜ ਨੇ ਬੱਚੋ ਵਰਤਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ? 28 ਰਾਜ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਬੱਚੋ? 8। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 2 ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, 2 ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੋੜੇ ਗਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ? ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ। 370 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 370 ਧਾਰਾ, ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ 2 ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬੱਚੋ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਇਹ 2 ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ। ਔਰ ਦਾਦਰ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਊ, ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਾਦਰ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਊ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਦਾਦਰ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਦਮਨ ਦਿਊ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ 26 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਬੱਚੋ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 8। ਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੋ? 28। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਤੋਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੂਸਰੀ ਅਨੁਸੂਚੀ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਤਨਖਾਹ, ਸੈਲਰੀਜ਼, ਕਿੰਨਾ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬੱਚੋ? ਭਾਰत ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾनिक पोस्टां ने, राष्ट्रपति, जिमें
राष्ट्रपति, भारत दा मुख्य जज, भारत दा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत दे राज्यां दे राजपाल, लोक सभा दा स्पीकर, इन्हां सारियां नूं जिहड़ियां तनखावां दित्तियां जांदियां ने उन्हां दी जानकारी किस दे विच है बच्चों? दूसरी अनुसूची दे विच। ठीक है बच्चों, दूसरे शेड्यूल दे विच। और इन्हां सारियां नूं जिहड़ी तनख्वाह दित्ती जांदी है वो दित्ती जांदी है भारत दे संचित निधि फंड दे विचों, आर्टिकल 266 दा पहला। ठीक है बच्चों, 266 दा पहला भाग। तो संचित निधि फंड कंसोलीडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, भारत सरकार का सारा पैसा जिहड़ा भारत सरकार पैसा इकट्ठा करती है वो किस दे विच जमा होंदा है? संचित निधि विच, जिस दे विचों भारत के संविधानिक पोस्टां वाले परसनस नूं, व्यक्तियों नूं तनखावां दित्तियां जांदियां ने, जिन्हां दा जिक्र है दूसरी अनुसूची विच बच्चों। तीसरी अनुसूची, तीसरी दे विच है बच्चों सौं, ओथ, एफर्मेशन। तो ये भारत के जिहड़े संविधानिक पोस्टां वाले व्यक्ति ने, परसन ने, भारत के प्रधानमंत्री, स्पीकर, ठीक है बच्चों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राजपाल, तो उन्होंने सौं किवें चुकाई जाती है, किहड़ा बंदा उन्होंने सौं चुकाएगा, उसकी जानकारी आपां नूं किस अनुसूची तो मिलती है बच्चों? तीसरी तो। हाँ जी, चौथी अनुसूची दे विच है बच्चों एलोकेटेड सीट्स ऑफ राज्य सभा, राज सभा दियां सीटां दी वंड। हाँ जी बच्चों, किहड़े राज नूं, किहड़े केंद्र शासित प्रदेश नूं राज सभा विच कितनियां सीटां मिलणगियां? ठीक है, जिस राज की पापूलेशन ज़्यादा होएगी उन्होंने सब तो ज़्यादा सीटां मिलणगियां। आपां पढ़िया सी राज सभा वाले टॉपिक विच। तो जिस तरह यूपी भारत का प्रदेश है, उसकी जनसंख्या सब तो ज़्यादा है, तो उसनूं राज सभा में सब तो ज़्यादा सीटां प्राप्त ने, 31 सीटां ने बच्चों। पंजाब की गल करिए तो पंजाब कोल कितनियां सीटां ने राज सभा में? 7। ठीक है बच्चों, तो इन्हां दी जानकारी आपां नूं मिलदी है चौथी अनुसूची दे विच। हुण मैं तुहानूं दस्सिया सी इन्हां नूं आपां 4 भागां 'च वंड के याद करांगे। तो आ पहले 4 भागां 'च पहली भारत के राज अते केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि भारत दे विच सारा कुछ की है राज अते केंद्र शासित प्रदेश ने ना, तो सब तो पहली अनुसूची। दूसरी, हाँ जी, पैसा 2 तरीकों नाल कमाया जाता है, ईमानदारी नाल ते भ्रष्टाचार करके। ठीक है बच्चों, और पैसे नूं आपां 2 नंबर ही कहने आ। ठीक है, तो इस तरीके नाल तुसीं याद रख सकते हो। सैलरीज की गल 2 नंबर विच। तीसरा, जदों एक व्यक्ति नूं तनख्वाह मिलनी स्टार्ट हो जाती है, वो राजी हो जाता है मैं इन्ने रुपइया ते काम करन नूं तैयार हाँ, तो फिर वो बच्चों उसनूं जिहड़ी भी सौं चुकाई जाती है वो चुक लैंदा है। ठीक है ना। चौथी गल, राज सभा, फिर उनका राज शुरू हो जाता है बच्चों। इस तरीके नाल याद रख सकते हो। राज सभा मतलब पहला उन्होंने तनख्वाह फिक्स होगी, फिर उन्हें सौं चक ली, फिर वो राज शुरू हो गया, हुण उन्होंने तनख्वाह मिलती है तो उनका जिहड़ा बच्चों राज शुरू हो गया। तो राज सभा दीयां सीटां, ठीक है ना, राज शुरू हो गया तो फिर वो की करेगा? सभावां करेगा, आपदे वर्गे बंदियां नूं जोड़ेगा, उन्हां नाल बैठ के मीटिंग्स करेगा। इस तरीके नाल बच्चों इन्हां नूं आपां याद रख सकते हैं। अगली अनुसूचियां की गल करिए, नंबर 5 नंबर और 6 नंबर, ये गल करती है बच्चों भारत के अनुसूचित खेत्रां की। 5वीं अनुसूची, 5th नंबर शेड्यूल, अनुसूचित जाति अते जनजाति खेत्रां दे प्रशासन दे बारे गल करती है बच्चों। शेड्यूल्स एरिया, शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, कबीले जिहड़े भारत विच अज भी कई जगह हैगियां ने जिथे भारत दे विच कबीलियां दे रूप में लोग काम करते हैं। ठीक है ना, कबीले हैगे ने उत्थे। 6वीं अनुसूची इस दे नाल ही मिलती जुलती है बच्चों। 6वीं अनुसूची विच असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन्हां 4 स्टेटां दे जनजाति खेत्रां दे प्रशासन की गल करती है बच्चों 6वीं अनुसूची। किहड़े 4 राज? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम दे जनजाति जिहड़े खेत्र ने उन्हां दी गल करदी है, उन्हां दे प्रशासन की गल करदी है 6वीं अनुसूची। 5वीं गल करदी है अनुसूचित जाति अते जनजाति खेत्रां दे प्रशासन की। ठीक है बच्चों, 5वीं जनजाति अते
अनुसूचित जाति के जनजाति खेत्रों की गल करती है। 6वीं गल करती है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। किवें याद रखोगे? असम AM, असम, मेघालय, त्रिपुरा TM, ठीक है। AM PM तो आप याद रखते हैं बच्चों, तो ये याद रखना तुसी AM TM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 4 जनजाति खेत्रों की गल किहड़ी अनुसूची करती है? 6वीं अनुसूची, ठीक है बच्चों। इन्हों 6वीं अनुसूची विशेष अधिकार दिते गए ने। इन्हां 4 स्टेटां दे कबीले जिहड़े ने शेड्यूल ट्राइब्स ने उत्थों दे, ठीक है। AM TM या असम, असम की की चीज़ मशहूर है बच्चों? चाह। ते असम की चाह मेघ, मेघ मतलब बदल, बारिश। जदों बारिश होंदी है तो फिर चाह बड़ी स्वाद लगती है। कित्थों दी? असम की। पूरा मतलब पूरा मज़ा आता है, मज़ा मतलब मिजोरम, ठीक है बच्चों। तो जदों मेघ, बादल, बारिश हो रही है तो असम की चाह दा पूरा मज़ा। इस तरीके नाल ही आपां इहनूं याद रख सकते हैं। यह है 5वीं ते 6वीं अनुसूची बच्चों। हुण गल करते हैं आपां 7वीं ते 8वीं अनुसूची दी। 7वीं अनुसूची जिहड़ी की गल करती है बच्चों केंद्र अते राज्यां दे संबंध दी। केंद्र अते राज्यां दे संबंध दी। और ये ज़्यादा शक्तिशाली किसनू मनती है, किसनू ज़्यादा पावरा देंदी है? केंद्र नू बच्चों। और इस दे विच अगर गल करिए तो 3 तरह दीयां सूचियां, लिस्ट्स काम करदियां ने बच्चों। संघ सूची, यूनियन लिस्ट, राज सूची यानी कि स्टेट लिस्ट, और तीसरी है बच्चों कनकरंट लिस्ट, समवर्ती सूची। यानी कि भारत दे विच 2 तरह दी सरकारां काम करदियां बच्चों, केंद्र अते राज सरकार। तो वो केंद्र अते राज सरकारां दे जिहड़े काम ने, विषय ने, सबजैक्ट्स ने, उन्होंने आपां 3 सूचियां च वंडिया होया है। भारत सरकार दे संविधान के अकॉर्डिंग यूनियन लिस्ट, जिस दे उपर सिर्फ ते सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। जिस तरह करंसी बच्चों, मुद्रा, जनगणना। हाँ जी बच्चों, करंसी। हुण करंसी दे विच कोई चेंज करना है, पूरे भारत दे विच एक ही करंसी चलती है ना बच्चों। तो भारत दे विच रुपया करंसी चलती है, जिसका सिंबल आ वाला है बच्चों, ठीक है ना। तो पूरे भारत दे विच एक ही करंसी चलती है। तो वह लिस्ट किहड़ी लिस्ट च आंदा है? विशा यूनियन विच। जनगणना भारत विच किन्ने सालों बाद जनगणना होंदी है बच्चों? 10 सालों बाद, ठीक है ना। तो वह किसका विषय है, किसका काम है जनगणना कराना? भारत की केंद्र सरकार का। तो इस तरह के विषय भारतीय फौज, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन रेलवे, ठीक है बच्चों, ये सारे विषय किस दे विच आंदे है? संघ सूची विच। और राज सूची की गल करिए तो स्टेट लिस्ट, जिस तरह पुलिस। हुण पुलिस, पंजाब पुलिस, तो पुलिस का प्रबंध करना किसका काम है बच्चों? स्टेट का, ठीक है बच्चों, पुलिस का प्रबंध करना स्टेट का। तो इस तरह के सारे विषय जिहड़े ने किस दे विच आंदे है? स्टेट लिस्ट विच। हाँ जी, कनकरंट, जिस दे विच केंद्र अते राज, केंद्र प्लस राज, सम मतलब जोड़, तुहानूं दस्सिया सी बच्चों। तो किन्हां दा जोड़? केंद्र अते राज दोनों मिल के काम करते हैं। पर ज़्यादा गल किहदी मन्नी जाती है? ज़्यादा शक्तिशाली किस नूं मन्निया जाता है बच्चों? केंद्र सरकार नूं। जिस तरह शिक्षा है, एजुकेशन है, वो केंद्र अते राज सरकारां दा इकट्ठा विषय है बच्चों। सेहत, हैल्थ, हाँ जी, तो हैल्थ, लोगों की हैल्थ, पब्लिक हैल्थ जिहड़ी है किन्हां दी जरूरी है? किन्हां दे लई जरूरी है? लोगों की हैल्थ की देखभाल करना, उन्होंने प्रोवाइड्स कराना, फैसिलिटीज़ सेहत नाल रिलेटिड, शिक्षा नाल रिलेटिड। तो एक किस दे विच आंदे है विषय बच्चों? समवर्ती सूची दे विच, ठीक है बच्चों। समवर्ती यानी कि केंद्र ते राज दोनों मिल के काम करनगे, पर ज़्यादा गल किहदी मन्नी जाएगी? केंद्र सरकार दी। हाँ जी बच्चों, केंद्र सरकार दी। आपां पढ़िया सी शिक्षा वाले च 21A आर्टिकल, 21A भारत के संविधान की 86वीं सोध, जिस दे नाल भारत दे विच 6 तो 14 साल के बच्चों को जिहड़ा है मुढ़ली सिक्ख्या जिहड़ी है जरूरी कर दी गई है, फ्री। पहले 8 साल की सिक्ख्या, ठीक है ना बच्चों, पढ़िया सी ना आपां। तो ये 21A आर्टिकल शिक्षा नाल, सेहत, हैल्थ। हुण जिस तरह कोविड चल रहा है,
ਸਿਹਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕਿਸੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 97 ਵਿਸ਼ੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਬੱਚਿਓ? 98 ਵਿਸ਼ੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਸੌਰੀ 97 ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਬੱਚੋ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 98। ਸੰਘ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੀ? 97। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਬੱਚੋ? 98 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ 66 ਬੱਚਿਓ, ਔਰ ਵਰਤਮਾਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 62 ਵਿਸ਼ੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 62 ਵਿਸ਼ੇ। ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਦੋਂ 47 ਸੀ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 52। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਤਾਂ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ? 52। यूनियन लिस्ट किन्ने ने? 98 और स्टेट लिस्ट किन्ने ने? 62। जो संविधान लागू होया सी उदों सी 97, 66 और 47। ठीक है बच्चों, इस तरीके नाल तुसीं इन्हां नूं याद रख सकते हो। किहड़ा विशा संघ सूची च आंदा है, किहड़ा राज सूची च, किहड़ा कनकरंट लिस्ट विच। अगली गल करिए बच्चों 9 तो 8वीं अनुसूची दी, 7वीं तो बाद 8वीं अनुसूची। हाँ जी बच्चों, 8वीं अनुसूची दे विच की है बच्चों? भारत दियां भाषावां बारे। हाँ जी बच्चों, जदों भारत का संविधान लागू होया सी तो उदों मान्यता प्राप्त भाषावां सी 14। इनू याद रखना बड़ा आसान है। हुण किनियां ने वर्तमान दे विच? 22। 8वीं अनुसूची ते किनियां ही भाषावां और जुड़ गईयां? 8 ते किनियां हो गईयां वर्तमान विच बच्चों? 22। हाँ जी, तो वर्तमान भारत दे विच मान्यता प्राप्त रैकोगनाइज लैंग्वेज किनियां ने? 22। इन्हां दे विचों इंग्लिश जिहड़ी है वो रैकोगनाइज लैंग्वेज नहीं गी बच्चों, ये गल याद रखनी है। भारतीय संविधान की 22 भाषावां दे विच इंग्लिश जिहड़ी है वो मान्यता प्राप्त भाषा नहीं हैगी। हाँ जी, तो गल करिए 14 भाषावां सी, तो 15वीं भाषा बच्चों जोड़ी गई वो सी सिंधी 1967 दे विच, और भारतीय संविधान की 21वीं सोध करके। उस तो बाद बच्चों 16वीं भाषा जोड़ी गई कोंकणी, जिहड़ी कि गोवा विच बोली जाती है। 17वीं भाषा मणिपुरी, 18वीं भाषा नेपाली। भारतीय संविधान दे विच इन्हां नूं जोड़िया गया बच्चों 1992 विच 71वीं सोध करके। ये 3 भाषावां जोड़ियां गईयां 1992, 71वीं सोध करके कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। उस तो बाद बच्चों 19, 20, 21 ते 22 हाँ जी मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। हाँ जी बच्चों, ये 4 भाषावां जोड़ियां गई भारतीय संविधान दे विच 2003 दे विच, और 92वीं सोध करके बच्चों। हाँ जी, 92nd अमेंडमेंट 2003। ठीक है बच्चों, 21वीं सोध करके सिंधी भाषा जोड़ी गई 1967 विच, फिर जोड़िया गई 3 भाषावां 1992 में 71वीं सोध करके कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कॉमन। इस तरीके नाल याद रख सकते हो बच्चों। तुसी देखो कॉमन, कॉमन। ठीक है बच्चों, कोंकणी, मणिपुरी ते नेपाली। ओके बच्चों, 71वीं सोध 1992, और फिर मैथिली, बोडो, डोगरी ते संथाली 4 भाषावां जोड़िया गई 2003 विच। भारतीय संविधान की किनवीं सोध? 92 नंबर सोध 92। आ देखो 21 ते 71 दोवां नूं जोड़ दिता तब बन गया बच्चों 92। इस तरीके नाल तुसीं याद रख सकते हो, दोवां दा जोड़ किया तो 92 बन गया। और अगली सोध 92 नंबर, भाषावां भी 4, मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। मैथिली, थाली, मैथिली,
ਤੇ ਸੰਥਾਲੀ। ਵੇਖੋ ਇੱਕੋ ਵਰਗਾ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬੋਡੋ ਬੋ ਬੋਡੋ, ਡੋ ਤੋਂ ਡੋਗਰੀ। ठीक है बच्चों, इस तरीके नाल याद रख सकते हो। तो ये 4 भाषावां जोड़ियां गई 2003 92वीं सोध, 3 भाषावां 1992 71वीं सोध, पहली 15वीं भाषा 1967 21वीं सोध करके, और वर्तमान कितनी भाषावां ने 22। ठीक है बच्चों, ये सी 8वीं अनुसूची। हुण उस तो बाद 3 जिहड़ियां नवीं अनुसूचियां जोड़ियां गई भारतीय संविधान दे विच। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची की गल करिए बच्चों, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई सी भारतीय संविधान दे विच पहली सोध करके बच्चों 1951 दे विच। 9वीं अनुसूची नूं ऐड किया गया 1951, और पहली सोध सब तो की गई जो भारतीय संविधान दे विच। तां इह संबंधित सी बच्चों भूमि सुधार नाल। भूमि सुधार, भूमि का अधिग्रहण करना, भूमि नूं एक्वायर करना। इस दे विच बच्चों 284 जिहड़े ने वो विषय शामिल किए गए। और भूमि सुधार, ठीक है, भूमि नूं सुधारन वास्ते राज्यां नूं भूमि सुधार जिहड़ा जिमीदारा सिस्टम चल रहा सी अंग्रेज़ां दे टाइम का, उसनूं खत्म कर दिता गया। भूमि दे सुधार करन दी लोड़ सी, उसनूं अधिग्रहण कर सकदियां ने राज सरकारां, और इसनूं किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती सी बच्चों। पर 2007 विच हाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी अगर मौलिक अधिकारां नूं छेड़िया जाता है और संविधान की उलंघना की जाती है, मौलिक अधिकारां की उलंघना करता है कोई भी विषा इस दे विचों, तां इसनूं अदालत विच बच्चों चुनौती दी जा सकती है। 2007 विच सुप्रीम कोर्ट ने आपकी जजमेंट में क्या सी। ठीक है बच्चों, तो भूमि सुधारा नाल भूमि का अधिग्रहण कर सकदियां ने राज सरकारां। तो ये किस दे विच है, 9वीं अनुसूची विच। 10वीं अनुसूची, 10वीं ये शामिल की गई भारतीय संविधान दे विच 52वीं सोध करके 1985 दे विच। दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ बच्चों, एंटी डिफेक्शन लॉ, द तो 10, द तो दल बदलना। ठीक है, इस तरीके नाल याद रख सकते हो। 52वीं सोध 1985, दल बदलना। मान लो इत्थे 2 तरह के पार्टियां ने, बीजेपी और कांग्रेस, INC। तो बीजेपी दे मान लो हम जिस तरह लोक सभा की गल करिए तो 543 MP ने बच्चों, तो 300 बीजेपी दे कोल आ गए और 243 कांग्रेस दे कोल आ गए बच्चों। ठीक है, तो कांग्रेस का एक MP जितन तो बाद हुण सरकार किस दी बननी है, बीजेपी दी। तो एक कांग्रेस का MP जिहड़ा वो इधर आ जाए तो इधर गिनती होगी बच्चों 301। यानी कि उन्हें की कर लिया, अपना दल बदल लिया। किस चीज़ को देख के, मौका देख के भी सरकार किस दी बन रही है, बीजेपी दी। इस तरीके नाल बच्चों नहीं हो सकता। तो यह किस कानून की उलंघना होएगी, दल बदन कानून की। यानी कि इलैक्शन जितन तो बाद तुसी आपदी पार्टी नूं चेंज नहीं कर सकते। अगर तुसी अपनी पार्टी नूं बदलना चाहते हो, दूसरी पार्टी शामिल होना चाहते हो, तो इलैक्शन तो पहला जा सकते हो। ठीक है बच्चों, वोटां पैण तो पहला तुसी किसी भी पार्टी दे विच शामिल हो सकते हो। अगर वोटां पै गईयां, सरकार बन गई, तो तुसी आपदी पार्टी बदल नहीं सकते। तुहाडी पूरी पार्टी दूसरी पार्टी नूं समर्थन दे सकती है। ठीक है बच्चों, यह है दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। अगली अनुसूची की गल करिए बच्चों 11वीं। तो 11वीं अनुसूची आप पढ़िया सी। हाँ जी, 11वीं अनुसूची तो ये गल करती है बच्चों पंचायती राज, पंचायतों को जिहड़े अधिकार दिते गए, पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान की 73वीं सोध, जिसनों कि 1993 दे विच लागू किया गया बच्चों। पंचायतों को अधिकार दिते गए, 29 विषयों के उपर पंचायत जिहड़ियां ने कानून बना सकदियां बच्चों। ठीक है, तो ये पढ़ांगे आप अगे टॉपिक पंचायती राज व्यवस्था। 29 विषयों के उपर पंचायत जिहड़ियां ने कानून बना सकदियां ने, और 73वीं सोध करके 1993 तो इन्हों भारतीय संविधान दे विच शामिल किया गया। 12वीं अनुसूची भारतीय संविधान की अंतिम अनुसूची बच्चों, शहरी
ਵਿਵਸਥਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੋਧ? 74ਵੀਂ ਸੋਧ 1993 ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੱਚੋ। ਔਰ 18 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ MCs, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, MC ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ? 12ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ। 74ਵੀਂ ਸੋਧ 1993 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ? 18 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਜ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ। ਸ਼ੈਡਿਊਲਸ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਬੱਚੋ? 8। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੋ? 12। 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜੁੜ ਗਏ? 4। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਤੋਂ 4 ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਾਰੇ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ। ਤੀਸਰੀ, ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਤੀਸਰੀ ਓਥ ਐਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਹਾਂਜੀ। 6ਵੀਂ ਅਸਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਔਰ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸੂਚੀਆਂ, 3 ਸੂਚੀਆਂ, ਸੰਘ ਸੂਚੀ, ਰਾਜ ਸੂਚੀ, ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ। ਸੰਘ ਸੂਚੀ ਜਿਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਜਿਸ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਮਵਰਤੀ ਜਿਸ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। 9 ਤੋਂ 12 ਇਹ 4 ਨਵੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। 9ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਕਦੋਂ ਜੋੜੇਗੀ? ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 1951 ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। 10ਵੀਂ ਦਲ ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। 11ਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ, ਔਰ 12ਵੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ 11ਵਾਂ ਪਾਠ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪਿਕ ਸਬ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।